Age is just a number. That's one thing. Don't go by the color of my hair. What kind of a feeling is there when you had your first bike? After that, like operation हुआ major surgery which happened, but it did not stop me. Rather, I'm going more faster now. Because आपने कहा कि injury भी हुई, then also you're back on the track. So what kind of a satisfaction that you get while driving the bike? So every high you take with your bike, it gives you a very high in your life. Every speed you maintain, every high speed you maintain, it is a milestone you achieve in your life. How do you differentiate between a biker and a rider? Actually, I compete with myself. I don't compete with anybody. I'm just trying myself, how good I can be. जब आप एक ग्रुप में होते हैं, maybe 10 or 15 or 20 whatever people are there, how do you communicate with each other? I should know मेरे पीछे कौन है and I should know मेरे आगे कौन है. पुलिस बहुत विजिलेंट हो गई है कि जितना कहीं सुपर बाइक दिखी उसको पकड़ लो, उसको सीज कर दो, उसको रोक दो, बिकॉज वो तो स्पीडिंग करेगा ही करेगा. और कई बार ये भी होता है कि शरीफ आदमी भी लपेटे में आ जाता है. आई हैव सीन मेनी एक्सीडेंट्स हैपनिंग एंड लॉट ऑफ पीपल हैव क्रिटिकल मतलब इंजरीज हुई हैं. So today we have with us Captain Joshi. In fraternity call him Captain or Joe. So what would you like to be called today? Anything is good, but Joe is easy. People relate to me better. Any part of the country, Joe Okay. is easier. So Yeah. Joe, welcome to Motors No Limit. Thank you so very much. So at the age when people actually start thinking about retiring, you started about biking. तो ये क्यों शुरू किया? What motivated you to start this thing? Can you just tell us a story around it? So I'll answer your question in two parts. First, Sure. age is just a number. That's one thing. Don't go by the color of my hair. That's Go what- go by the color of my heart. That's important. That's the first part. Second is, see, I've always been into motorcycling since the age of, I think, 15, 16 years. We used to take away my dad's Lambretta. We used to open it up with a scissor, Okay. unlock it and take it out, me and my brother. So since that time, I've been in love with automobiles. But it's been many years now, and you can say that I've been riding now for almost 35 years. Okay. But as far as competitive motorcycling goes, like it's about, I'm very new in competitive motorcycling. I started in 2017, in fact, and then we saw COVID, so 1.5 year we didn't ride, and so I'm very new actually into competitive motorcycling. So can you share your journey from the love of motorcycle to going into the competition, and when you're possessing some bike, you feel kind of a person who is owning something which nobody else might not be owning it. So what kind of a feeling is there when you had your first bike till the time what you are doing it right now? So long story, but I'll summarize it quickly for you. Please. So it all started in the year, I think, 1987. I had a friend, he was from Thailand. And as we all know, Thailand is the hub for motorsports. At one point in time, it was Siam Moto. Siam is like another name for Thailand, Siam. So Siam Moto, and this guy had a lot of journals and books and magazines of bikes, which we did not have in India at that time, or at least we were not exposed because there was no social media, no True. internet, nothing was there. So whatever I saw there, and I was very fancied, and I said, this is one thing, and I would love to have a bike like this. But it wasn't available at that time. We had Rajdoot, Java, Royal ESD. Enfield, ESD, yes. These were the bikes. I think there were 4-5 categories of motorcycles we had. So my father got me a 1971 model old Java motorcycle. उस टाइम में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि 10 साल में नहीं चला सकते, 15 साल, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था. गुड ओल्ड डेज. तो 1971 की उन्होंने मुझे एक जावा लेके दी जो चालू हालत में थी, बट इट वाज मतलब ठीक ठाक ही थी. बट आई वांटेड टू डू सम फेस लिफ्टिंग ऑफ दैट बाइक. Okay. तो मैं अपने फ्रेंड के साथ, हिज नेम इज, आई स्टिल रिमेंबर, ओए, दैट वाज हिज नेम, ओए वचरा. आई डोंट नो अच्छा. ओए वचरा, आई एम नॉट इन टच विद हिम नाउ, बट ही वाज द गाय एंड ही हेल्प्ड मी. फिर हमने उस बाइक को बनाया, उसका फ्यूल टैंक बीच में से काटा, उसको छोटा किया. पहले, आजकल तो हिट आता है, पहले फिलेट के डब्बे आते थे, फिलेट के डब्बे में पेंट भर के, उस टाइम Spray. करेक्ट, उस टाइम Okay. मारुति नई लॉन्च हुई थी, तो एक मारुति रेड कलर होता था. बिल्कुल. सो वी मिक्स दैट अप, और स्प्रे से हमने उसको पेंट किया. जो फ्रंट फोक्स होते हैं, उसका जो स्लीव होती है उसको उतार दिया
ताकि सस्पेंशन के ऊपर जो स्प्रिंग्स होते हैं वो दिखाई दे, तो गिव्स अ मोटो यू नो दैट मोटो क्रॉस लगाता बाइक की है। लुक देता है. So उसको फेंडर्स को ऊपर उठाया एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल बाइक. एंड माय गर्लफ्रेंड हु लेटर बिकेम माय वाइफ, शी वुड कॉल इट रोजा समथिंग लाइक दैट, कि मतलब रोज आ. अच्छा. And every time we would go for a ride, something will fall from the bike. Oh, Barbara, not Rosa, Barbara, she would call it Barbara. That was the name given to that bike. So that was my first bike, and I had a lot of affiliation with it. And thereafter, I got a KB Kawasaki Bajaj 600. I remember very well when I was in the college. After passing out from the college, I went into the army, and there I did not have a bike. I had, in fact, a scooty, which was LML Vespa at that point in time. Okay. And then from there on, I think I had a Royal Enfield Bullet, which is a 350 left side brake, cast iron engine, which I had for a long time. And then there have been many bikes. Then I got into Himalayan, then an Impulse, then a Charisma, Expulse, KTM. So the journey continues. And about, I think, about 20, 25 years ago, we would be more into adventure riding sort of thing. Go on my Royal Enfield, कभी ऐसी जगह चले गए, जिम कॉर्बेट के जंगलों में चले गए, कैंपिंग किया, वहाँ खाना वाना बनाया, एडवेंचर. तो वो एक वो तरह की राइड थी जिसे आजकल लोग पराठा राइड बोलते हैं ना, यहाँ से मूर्थल गए और वापस आ गए. हाँ, तो उस तरीके का कुछ. बट हम वो पराठा राइड नहीं करते थे. वी यूज्ड टू गो एक्चुअली इनटू लेसर नोन एरियाज. एंड वी, I don't know, but you must be familiar with this group called 60 kph. Yeah. So there was this friend of mine, Gaurav Jani, God bless his soul, he's no more, but he started that group, and this group still lives because उसमें hardcore bikers ही हैं, and they go on such adventure trips. Small fraternity, but very closely knit. तो वो करते थे हम. उसके बाद 2017 में I heard of competitive motorcycling भी होती है इंडिया में. पता ही नहीं था, क्योंकि अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे इस मिलने से पहले, यहाँ आने से बिल्कुल. पहले, कि बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में. लेकिन कर बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन जानते नहीं जानते है, हैं, बिकॉज बिल्कुल. जो कवरेज मिलनी चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल नहीं रही है मिलती इसको. अब जैसे डाकार है, अभी डाकार होने वाली है, अभी आई थिंक 3rd या 4th जनवरी से शुरू हो रही है 2025. इट्स द टफेस्ट रैली इन द वर्ल्ड, टफेस्ट मोटर स्पोर्ट इवेंट इन द वर्ल्ड. Agreed. बट हमारे टीवी चैनल्स को राइट्स ही नहीं मिलते हैं उसको करने के लिए. देन यू हैव टू गो टू, आई विल नॉट नेम दैट चैनल, यू हैव टू गो सब्सक्राइब टू दैट चैनल ओनली देन. Otherwise, it should be easily available so that people will know what is happening, what are people up to, what are the type of machines they are using, क्या challenges होते हैं, what are Behind the the scenes preparations. क्या है. हाँ, preparations क्या होती हैं exactly. तो वो सब हमें नहीं मिलता. तो मैं 2017 में competitive motorcycling में गया. मेरा पहला competition was Raid the Himalaya. Okay. Wow. Yeah, Okay. so that used to be very tough. Toughest in India, I suppose. Absolutely. Now it is discontinued because Mr. Vijay Parmar, the godfather Godfather of of Himalaya. yeah, Raid the Himalaya, he started that and I participate. First वाला मैं complete नहीं कर पाया because of obviously it was very tough, and more than that I was not well. I was running fever, so I decided to discontinue, which I have never done thereafter, because come what may, you have to continue riding if you are into no looking back is the baseline. उसके बाद फिर 2018 में किया. देन आई गॉट अ पोडियम, आई गॉट अ स्टॉक कैटेगरी के अंदर मैंने चलाई हिमालयन, एंड आई गॉट सेकंड रनर अप. उसके बाद देन I think they've discontinued after 18 only. 2019 was the last, जिसको Okay. 2000 yes, the raid, I think it was raid 18 which happened in 2019. तो Yeah. वो थी लास्ट. उसके वो आई पार्टिसिपेटेड इन दैट, गॉट अ पोडियम देयर आल्सो. उसके बाद देन आई बीन पार्टिसिपेटिंग कंटिन्यूसली इन सजोबा. यूडीसी किया मैंने, अल्टीमेट डेजर्ट चैलेंज, व्हिच वाज अनदर फ्रीकिंग सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस आई हैड. देन आई डिड डेजर्ट स्टॉर्म वंस. It's also very tough because you are riding in 48-50 degrees Celsius temperature outside. It was again tough. And then Sajoba, I'm a regular. ROH करी, रैली ऑफ हिमालय करी, रैली ऑफ चंबा करी. ऐसे काफ़ी सारे लोकल बिल्कुल, इवेंट्स तो बिल्कुल, काफ़ी local सारे events बहुत पार्टिसिपेट सारे. किया. एंड नाउ देर इज it's an ongoing thing. It's like breakfast lunch dinner. So similarly is competition race like that. Now Sajoba is coming. Sajoba is St. John's Old Boys Association. वो एक इवेंट कराते हैं, बहुत अच्छा इवेंट कराते हैं वो लोग. तो दैट इज हैपनिंग आई थिंक स्टार्टिंग 28th of Feb and it goes through 2nd of March. It's I think 5-day. Yeah.
So it's actually 5 days. 3 days of riding, 1 day of scrutiny, Mhm. 3 days of competition, and then PD होती है prize distribution. 5th day you're free, you can go back. So I'm prepping for that now, and देखते हैं. Best of luck for that, sir. Thank you so much. Now I've got a question because when you said raid, which is in hills, Yeah. Sajoba, it's on plain. Yeah. And that other one, UDC, And it's Desert Storm, Desert Storm. So it's in complete desert. correct. So how do you prepare yourself as a first thing, and how do you prepare your bike for all these 3 different categories? So is there special preparation that you need to do with the bike as well as for yourself? Mhm. So can you explain that part? Yeah, so see, first thing is you have to prepare your mind. If your mind is prepped, it is prepared, then you can take on anything. So how do you prepare that? So I'll come to that. So the first thing is, like you talked of Raid Himalaya or Rally of Himalaya or Rally of Chamba. Bilkul. So they are all in high altitude. So first thing is you have to prepare for that high altitude by working out more. You do more cycling. You have to increase your lung capacity. Mhm. All right. So you have to do more cardio. Weight training also is very, very important. And then practice. Obviously, you have to have more saddle time, so that you can ride long distances. You can be on the saddle and still feel comfortable. Mhm. Getting used to the saddle, we call it the saddle time. True. High saddle time. Then you have to also prep your bike, because जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में चलाते हो तो वहाँ पे अब तो खैर FI आ गई हैं. Mhm. तो FI के अंदर पहले हमें कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करनी पड़ती थी. आप हाई ऑल्टीट्यूड में जा रहे हैं तो वहाँ पर एयर ऑक्सीजन लेवल है लो, तो आपको फ्यूल मिक्सचर जो है वो लीन करना पड़ेगा. वो बहुत सारी चीज़ें होती थी. अब तो FI है तो बस कहीं भी ले जा सकते हैं. बट FI में भी इशू आते हैं. सो यू हैव टू प्रेप योर बाइक, यू हैव टू सी हाउ मच इट विल गो. देन यू हैव टू सी दी व्हाट इज़ योर मैक्स कैपेसिटी. अगर आपकी बाइक 100 जा रही है तो यू कैनॉट पुश इट बियॉन्ड. सो यू हैव टू, आपको अगर आपको पता है कि एक स्टेज पे 100 ही चला पाऊंगा मैं, तो Mhm. यू हैव टू बी फास्टर इन अदर स्टेज विच आर मोर टेक्निकल. Okay. So you have to cut short time there. So that's the type of prep you do for high High altitude. altitude. You have to learn how to go on meanders, कैसे fast turns लेने हैं, because one slip could mean fatality. दूसरा जो है वो डेजर्ट के अंदर क्या होता है, वहाँ दूसरा चैलेंज है. डेजर्ट के अंदर एक तो एक्सट्रीम वेदर इन टर्म्स ऑफ हीट है. Mhm. सर्दी से तो एक बार आपको अपने को कवर करके आप थोड़ा बच जाओगे. बचते तो नहीं है, बिकॉज हाथ ऐसा लगता है कि है ही नहीं. कभी Once you- frost bites और एब्सोल्युटली, सब होते बहुत हैं? बहुत बुरी तरह. फ्रॉस्ट बाइट तो नहीं होती, बट ऐसा लगता है कि जैसे आपने भट्टी में भी हाथ दे दिया ना, कोई ढाबा दिखा वहाँ रुक गए आप ट्रांसपोर्ट स्टेज में, उसमें भी 10 मिनट हाथ डालने के बाद भी हाथ को लगता है कि तब हाथ feel है ही होता नहीं है। आपके. बट इट इज जस्ट द माइंड विच कीप्स ऑन टेकिंग यू एंड यू कीप गोइंग. बट एक्स्ट्रा कुछ क्लोथिंग्स एक्स्ट्रा रहती हैं हिल्स के हिसाब से? हाँ, वो तो रखना ही पड़ता है हमारे को. देखिए ऐसा होता है कि वंस यू आर राइडिंग, जब आप कंपटीशन के अंदर जाते हो ना, तो आई हैव नेवर फेल्ट कोल्ड. Mhm. ये मैं ट्रांसपोर्ट स्टेज की बात बता रहा हूँ, जो हाथ भट्टी हाँ में जी, डालते हाँ हैं जी, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल। स्टेज, बिकॉज उसके बाद आपका कंपटीशन शुरू होगा. एंड व्हेन वी यूज्ड टू स्टार्ट द टेम्परेचर वुड बी -5. अब पांग और सरचू में अगर आप अक्टूबर में होती थी वो. अब तो खैर ग्लोबल वार्मिंग हो गई है. आज कम से हो 6, गया 7, 8 साल temperatures। पहले तो और ठंडा था, और बर्फ़ भी गिर जाती थी कई बार. तो आपको पार्क फोर में, मतलब एक जगह होती है जहाँ पे बाइकर्स हैव टू कम बिफोर द रेस स्टार्ट्स, जैसे फॉर्मिंग अप एरिया, तो वहाँ पार्क फर्मे में आना पड़ता है. तो 5 बजे का टाइम होता है. अब 5 बजे पार्क फर्मे में आने के लिए आपको मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने पड़ेंगे, 4, सवा 4, 4:30, एंड देन यू हैव टू वार्म अप योर बाइक एंड कम टू पार्क फर्मे. इट्स वेरी वेरी कोल्ड, बाइटिंग कोल्ड. तो वहाँ पे आप खड़े हो. इवन गाड़ी वाले जो है ना, 4 व्हीलर्स जो हमारे साथ कॉम्पीट करते हैं, वो कहते हैं हैट्स ऑफ टू 2 व्हीलर्स गाइस, बिकॉज यू आर So they're इन facing the ओपन. cold in या open. यू आर ओपन. हम तो गाड़ी में बैठे हीटर भी चला रखा है, बट यू हैज रियली, मतलब वो हमारे को बोलते हैं इस मामले में कि इट्स मच टफर थिंग विच यू आर डूइंग. तो इस तरीके से जो होती है क्लोथिंग जो होती है, वो बहुत ज़्यादा ग्लव्स आप नहीं पहन सकते. आई जस्ट शो यू, ग्लव्स की बात होती है. अब ये ऑफ रोडिंग के या रैली राइडिंग के लिए हम ग्लव यूज़ करते हैं. Okay. बहुत बेसिक थिन लेयर है, और इसके बहुत थिन प्रोटेक्शन होता है, बिकॉज रैलीज में आप हाथ के बल नहीं गिरते हो, स्किड नहीं होते हो. आप गिरते हो तो ज़्यादा शोल्डर, एल्बोज और नीज पे जाते हो. वेरस जब आप मोटो जीपी करते हैं या आप रोड रेस करते हैं, उसके अंदर यू स्किड. Mhm. Off roading में you don't skid, you fall Yeah, and you there are fall, undulations yeah. and you'll get fixated. But roads के ऊपर you require gloves. These are not actually MotoGP or gloves, but these are basically commuting gloves, so which give you solid knuckle protection. फिर leather होता है, ताकि अगर आप रोड पे घिसते भी जाओगे तो you have some. This is a Correct, wrong yeah. example, but just to give you a difference. So it is something like that. Then you have to have your armor. You have to have a good quality of helmet. A helmet like this. This is Aero का helmet है, Striker. Not a very high end model, but then still it costs about 20K. Oh, this one?
Yeah, it's be 20,000 for a helmet. इसके ऊपर एक गॉगल्स आएगी which will again be about 7 to 8,000 rupees. Starting from there तो 30,000 तो ऊपर ही हो गया. Okay. उसके बाद आप बॉडी आर्मर पहनते हो, दैट कॉस्ट एटलीस्ट 20,000. उस आर्मर के ऊपर आप जर्सी पहनोगे, ठीक है. जर्सी सेट आप जो पहनोगे दैट वुड बी अबाउट 10 to 15,000. Okay. उससे कम आता है नहीं इंडिया में, तो अब हाँ. बहुत कम लोगों ने बनाना शुरू किया है, बट क्वालिटी नहीं है. Quality नहीं है. Then you come to gloves. A good pair of gloves will cost you 5,000 rupees. Okay. Then you have your underpants, which give you the hip protection, which will cost you about Scott वगैरह के लिए तो 5 to 7,000. उसके बाद आप वो पहनेंगे नी ब्रेसेस, Knee braces बिकॉज होते नी हैं. गार्ड्स आर यूजलेस. अच्छा. वो स्लिप हो जाते हैं. मैं आगे बात करेंगे उसकी कि जब हम कम्यूट में या लोग एडवेंचर राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं तो वाइट इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया. ब्रेसेस यूज़ करते हैं. ब्रेसेस कॉस्ट अबाउट 35 to 40,000. 40,000 से 50,000 के बूट्स आते हैं. तो yeah, so once you're sitting on your bike, you are worth about approximately 1.5-2 लाख का सामान 1.5 आपने. लाख का तो सामान पहना होता है. फिर अगर आप GPS होगा आपके So you पास, can give a competition to lot of ladies actually. फिर आपका GPS होगा. आजकल फ़ोन भी यूज़ करते हैं, बट फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज डिस्प्ले वगैरह हिल जाता है. GPS is more robust. A GPS will cost you, or a trippy will cost you 40-50K. तो it's an expensive sport. और बाइक की मॉडिफिकेशन की तो हमने अभी बात ही नहीं करी है. और वो तो- दैट्स अगेन अ कॉस्ट अपर विच लिमिट है ही नहीं उसकी. उसकी कोई लिमिट नहीं है. यू कीप गोइंग एंड एवरी टाइम यू गो फॉर अ कंपटीशन यू हैव टू अपग्रेड योर बाइक True. एंड यू कीप रेजिंग द बार. तो डेजर्ट की जैसे मैं बता रहा था, डेजर्ट के अंदर जो प्रिपरेशन होती है उसमें आपको एक तो हीट के तैयारी करनी होती है. अब जैसे हम एसी में बैठे हैं, नाउ आउटसाइड टेम्परेचर इज वार्मर. अब वहाँ तो 45-46 तो नॉर्मल है. Normal है. जब आप बाइक चलाओगे तो बाइक इज ऑल्सो एमिनेटिंग हीट. And feel आपको भी like- गर्मी लग रही है. तो बिकॉज योर एड्रेनलिन इज हाई एंड योर True. पंपिंग, योर हार्ट इज पंपिंग फास्टर. तो उस टाइम के अंदर आई सजेस्ट डोंट यूज एसी, विच आई लर्न फ्रॉम टीम हीरो. They don't use ACs. They stay in the best of the hotels, but they don't use AC. They take bath with maybe warm water, not cold water during summers, Okay. peak summers. Drink regular water, not refrigerated water. Okay. Yes. So you prepare your body for that heat. Unfortunately, क्या होता है, अरे कल रेस है आज आराम कर लो. ठीक है. So तो you are AC having चलाया, ठंडा पानी पी रहे हैं, हाँ, cold drink पी तो रहे हैं. that is incorrect. दूसरी चीज जो जब आप when you are actually into the race, what happens is that sand is very tiring. Hills are not tiring. Agreed. Hills are confusing because वहाँ पे navigation का होता है. Desert में भी navigation big challenge, but वहाँ navigation के साथ साथ sand is so soft that you बाइक जो है grip, टायर्स ग्रिप लोग पेल देते हैं बाइक को. मतलब एक्चुअली पेलना जिसको बोलते हैं ना, वो क्लच दबा दबा के और थ्रॉटल लो गियर में रख रख के बाइक की भट्टा बैठा देते हैं. तो दैट इज, सो यू हैव टू नो वेयर टू सिट, वेयर टू स्टैंड, हाउ टू create that balance on the bike so that your bike doesn't wave too much and goes fast also. So these are certain things which we prep for depending. And Sajoba, coming to Sajoba, it's a mix of both sand, but not sand like Jaisalmer. But yes, sand, gravel, ग्रेवल होता है. हार्ड पैक भी होता है, और वहाँ पर भी हिल सेक्शंस हैं. वाटर बॉडीज हैं. वाटर बॉडीज हैं बहुत सारी. पिछली बार तो 2 वाटर बॉडीज थी. आई एम श्योर इस बार भी होगी. डेफिनेटली. हाँ, तो वो एक अच्छा चैलेंज होता है. सो हर रेस में कुछ ना कुछ एक अलग तरीके का चैलेंज होता है. एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन योर बाइक, एंड देन द थर्ड थिंग इज you have to gel together. Unless and until the man and machine is one, you will You will not never never. do well. Agreed on So that. you have to be in sync. That has to be one. Yeah. So this was basically you're preparing yourself. Yeah. Now with these 3 categories, because these are the 3 major categories in which people do Yeah. the racing. If you are not on the proper tarmac racing, Mhm. how do you prepare your bikes and the tires for these 3 categories? So what kind of a changes that you do? So जैसे मैंने बताया आपको, हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर अगर टार्मेक सेक्शन ज़्यादा है, सो यू विल नॉट बी यूजिंग टू मच ऑफ नॉबीज. अगर नॉबीज ज़्यादा बड़े होते हैं तो वो टार्मेक पे स्लिप मारता है. You have to explain the nobbies. नॉबी टायर एक तो रेगुलर टायर होते हैं जो बिल्कुल. हम लोग रोड पर देखते हैं. बिल्कुल normal. नॉबी टायर होते हैं जिसको देसी भाषा में गुड्डी वाले टायर, जैसे ट्रैक्टर के टायर होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी. गुड्डियाँ बोलते हैं उसको हाँ जी, हाँ लोकल. जी. मतलब इस तरह से उठे उठे होते हैं. जब वो चलता है तो वो डिग करता है रेत में या मिट्टी में, ताकि Grip अच्छा, बन पाए. हाँ, ट्रैक्शन बढ़ जाए. अब पहाड़ों के अंदर क्या होता है,
हम चलाते हैं उस टायर के साथ भी, बट बहुत सारी जगह में परमिट, अगर मान लीजिए आइस है, ब्लैक आइस आ गई, आइस नहीं ब्लैक आइस आ गई, देन you're gone. यू गॉन, क्योंकि ब्लैक आइस का कोई सोल्यूशन ही नहीं है अगर आपको पता नहीं है तो, और ब्लैक आइस पता भी नहीं चलती. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. आई हैव सीन मेनी एक्सीडेंट्स हैपनिंग एंड लॉट ऑफ पीपल हैव क्रिटिकल मतलब इंजरीज हुई हैं उसकी वजह से. अब परमार साहब ने एक हमारे को स्टेज था, कारगिल पहुंचना था हमने, कारगिल पहुंचने से पहले पूरी बर्फ़ गिरी हुई थी. ठीक है. और डाउन हिल में, अपहिल में तो एक बार को बर्फ़ पे बाइक चलेगी नहीं, बट डाउन हिल के अंदर तो कंट्रोल ही नहीं हो रही बाइक. स्लिप होती तो जाएगी. उसके लिए टायर्स बहुत ज़रूरी हैं. टायर प्रेशर को भी थोड़ा कम ज़्यादा करना पड़ता है, ताकि ज़्यादा इन्फ्लेटेड होंगे तो स्लिप ज़्यादा मारेगी. पत्थर आएंगे तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए. तो कई सारी चीज़ें जो देखनी पड़ती हैं. उसके अलावा जो बाइक्स के अंदर जैसे बिकॉज अगर काफ़ी हाइट के ऊपर कर रहे हैं, अब जैसे मनाली 6500 फीट, आप ऊपर चढ़ते हो रोहतांग पास, दैट्स अबाउट आई थिंक 11,000 है शायद. उसके बाद आप जब कुंजुम चढ़ते हो तो वो और ऊपर है, मतलब आप 14-15 हज़ार फीट जा रहे हो. तो ये बाइक शुड हैव एडिक्वेट पावर. इंजन ऑयल का बार बार चेंज करना पड़ता है क्योंकि ऑयल बर्न होगा. ब्रेक्स को भी काफ़ी बार क्लच प्लेट्स चेंज करनी पड़ जाती हैं ऑन द गो. मत वाइल यू आर. जैसे आपका आज रेस हो गई, जैसे रेस खत्म हुई अगले दिन फिर रेस है, तो शाम को आपका जो पास टाइम है, सो यू हैव योर टेक्नीशियन, आपकी टीम होती है पूरी, सो दे विल वर्क, दे विल सी कि क्लच अगर थोड़ा सा भी हार्ड हो रहा है लिवर. ये एक टिप भी है बाकी राइडर्स को भी, द मोमेंट यू फील योर क्लच इज गेटिंग हार्डर, दैट्स एन इंडिकेशन दैट योर क्लच इज वेयरिंग आउट. तो वो हमें पता चल जाता है, वो भी चेक करते हैं, तो वो चेंज करना पड़ता है. और बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्मॉल छोटे मोटे जो केबल्स हैं, और उनकी टेंशनिंग, ब्रेक पैड्स, और ये सारी चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है. उस तरीके से हम बाइक को प्रिपेयर करते हैं. सिमिलरली जब हम सैंड के अंदर जाते हैं, जैसे डेजर्ट के अंदर जाते हैं, वहाँ पे ये देखना पड़ता है कि टायर्स स्पेशली जो है, वहाँ पे टायर वेयर आउट नहीं होते, पहाड़ों में बहुत जल्दी होते हैं बिकॉज टारमेक भी है. यहाँ डेजर्ट है तो यहाँ पे आपको नॉबी चाहिए, और नॉबी का टायर प्रेशर बहुत मेंटेन करना पड़ता है. कई जगह होगा कि हार्ड पैक आएगा डेजर्ट में भी, कई जगह का बिल्कुल ही सॉफ्ट होगा. मेरी तो एक बार बाइक ऐसे हो गई थी, मतलब एक पहिया हवा में था, एक पूरा अंदर ही धंस गया था, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट टाइम इन द डेजर्ट. फिर डेजर्ट के अंदर राइडिंग की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं कि आपने क्लच आउट तो करना ही नहीं है, ब्रेक मारना ही नहीं है, बिकॉज आप जैसे ही थ्रॉटल छोड़ोगे बाइक अपने आप रुक जाएगी. सिंक कर जाएगी. अगर आपने ब्रेक मार दिया या थ्रॉटल छोड़ दिया तो योर फ्रंट विल सिंक, बिकॉज गोइंग लाइक दिस, जैसे छोड़ा तो फ्रंट विल सिंक. द मोमेंट द फ्रंट सिंक, गेम ओवर फॉर यू. यू लूज 10-15-20 सेकंड्स, यू आर फार बिहाइंड, खत्म. तो ये सारी चीज़ें हैं, उस हिसाब से हमें बाइक को वहाँ के लिए तैयार करना पड़ता है. फोक जो होते हैं, फ्रंट फोक, उसके अंदर सैंड घुसता है, वो सील को काट देगा, तो उससे वो ओवरफ्लो ना, ऑयल लीक हो जाएगा. तो उसको बार बार साफ़ करना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है कि सॉक्स ठीक से लगे हैं ताकि वो ना जाए. फिर फिल्टर बहुत जल्दी गंदा होता है बिकॉज फाइन डस्ट अंदर जाती है, और फिल्टर से जो जाएगा वो इंजन में जाएगा, वो पिस्टन और ये रिंग्स काट देगा, सारे के सारे हेड काट देगा. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और बाइक को उसी हिसाब से मेंटेन कर. तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, ये नहीं कि आप हूँ बस, वो कहता है ना किल्ली नप दे हूँ चले, ऐसे नहीं होता है. दैट्स अ डिफरेंस. यस, इसमें पता है क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कितना कर रहा हूँ, मेरी बाइक में कितना पोटेंशियल है. यू जस्ट कांट, मतलब यू स्क्रू योर बाइक, पेल रहे हो आप उसको, बिकॉज यू हैव टू फिनिश 5 days. दिस इज ओनली डे 1 और डे 2. कई बार होता है ना, मॉरली कोई बंदे ने ओवरटेक कर लिया तो आप, अरे यार इसने ओवरटेक कर लिया, दैट शुड नॉट कम इन योर माइंड. आप अपना चलते रहो, ensure that you go fast, but at the same time look after yourself, don't meet with an accident, don't crash, and don't drop your bike as much as possible, as low as possible. Don't try and drop it. So as you participate as an individual, Yeah, what kind of a team is behind, who's actually helping you or maintaining the vehicle and you? so there are I'll divide into 3 parts. Sure. पहले 2 कैटेगरी के राइडर्स होते हैं, प्राइवेटर हमारे जैसे, जो बेचारे अपने खर्चे पे चलाते हैं, और एक होते हैं फैक्ट्री रेसर, जैसे TR2 रेसिंग है, हीरो की टीम है, TVS की टीम है, ये सब टीम स्पॉन्सर्ड होता है. सो उनका, दे आर प्रोफेशनल राइडर्स, वी आर एमेच्योर्स, वी आर प्राइवेटियर्स. हमारा खुद का खर्चा है, किसी ने कोई छोटी मोटी स्पॉन्सरशिप दे दी, तो आई थ्रू योर पॉडकास्ट आई वुड वांट टू टेल पीपल कि भाई हम लोगों को भी थोड़ा बहुत स्पॉन्सरशिप, पार्ट स्पॉन्सरशिप ही करो, तो यू विल सी मोर ऑफ पीपल गेटिंग इनटू, बिकॉज चलो हम तो अफोर्ड करते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ गुड राइडर्स. और एक रैली की कॉस्ट मैं आपको बताऊं तो, आई टोल्ड यू बिफोर वी मेट,
here that 50 to 60,000 for a 3-day stage. लंबी होती है तो 1 लाख रुपए तक खर्चा जाता है. अब ठीक. बाइक मॉडिफिकेशन की बात ही नहीं है इसमें, वो अलग है. वो अलग से लाख 1.5 लाख 2 लाख का खर्चा वो अलग है. बाइक एंड उसके पार्ट्स अलग. और अपने पर जो आप कर रहे हो वो उसको छोड़ दो, कितना प्रोटीन पिया, कितना क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पी रहे हो आप, कितने रेड बुल पे, वो छोड़ दो आप. मतलब इसी के अंदर है, कितना जिम जा रहे हो. बेसिक खर्चा जो है वो 50,000 for a 3-day stage and up to 1 lakh for a 4 to 5 day stage, ये होता है. खैर, तो एज अ प्राइवेटियर हमारे पास टीम तो क्या होती है कि वी हैव वन व्हीकल which is ridden by a friend or somebody who's trying to help us. Then हमारा टेक्नीशियन होता है, और हमारे जैसे मैं हूँ, मेरा एक टेक्नीशियन है, उसका नवीन परेवा चंदा, he's a good technician who looks after my bike. So he's been with my bike for years. तो उसको पता है मेरी बाइक में इंजन ऑयल कब चेंज होना है, उसको पता है बाइक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और वो मुझे देख भी रहा है राइड करते. तो ये प्री हुआ, प्रिपेयर करना. बाइक सजोवा जाना है, और सजोवा के हिसाब से हमें ऐसी, क्योंकि वहाँ शॉर्ट स्टेजेस हैं, हमें इमीडिएट एक्सलेरेशन चाहिए, बूम. छोटे स्टेज हैं, 18-20 किलोमीटर है. डेजर्ट में जाना लंबे स्टेज है, 50 किलोमीटर का स्टेज है, तो वहाँ पर हमारे को इसका जो मिड रेंज ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे इनिशियल ज़्यादा चाहिए. तो ये सारी चीज़ें, हाँ ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन होता है. यस यस. और आप अपने टेक्नीशियन ये नहीं कह सकते कि मैंने बाइक यहाँ से करा ली, अब वहाँ सर्विस देख लेंगे किसी, क्योंकि कई सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो आपको सर्विस देते हैं विच कॉस्ट अबाउट 2,500 रुपीज़ पर डे, तो वो कॉस्ट अलग है. ठीक है. तो बट वी टेक अवर टेक्नीशियन, उनका रख रखाव, देखना, खाना पीना इज ऑल पार्ट ऑफ आवर दिस थिंग, यू नो, दे थिंक विच वी पार्ट ऑफ योर टीम. दे आर पार्ट ऑफ आवर टीम. वो एक ही टीम के होते हैं. और इस तरीके से हम लोग अपनी बाइक्स को प्रिपेयर करते हैं, प्री रेस, ड्यूरिंग रेस, और फिर आफ्टर रेस. रेस हो गई, अब ये नहीं कि बाइक को फेंक दिया. सो यू हैव टू गेट बैक, यू हैव टू लोड योर बाइक्स बैक इनटू योर व्हाटएवर व्हीकल. उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसमें क्या नुकसान हुआ है उसको ठीक करना. तो ये 3 फेजेस के अंदर काम होता है. और फिर रेगुलर जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तब भी आपकी सर्विस जो है इसी तरह से चलती रहती है. तो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस एक्चुअली, और दैट्स द टाइप ऑफ टीम वी हैव. प्लस आवर टेक्नीशियन, जैसे मेरा टेक्नीशियन है, वो मुझे देखता है कुछ जगह पर जहाँ वो पॉसिबल है स्टेज में. जैसे मैंने स्टार्ट लिया तो वो देख रहा है, वो कहेगा सर आपका ना, आप क्लच ज़्यादा दबा रहे हो, आप चॉपिंग कर रहे हो. दिमाग में बैठ गया. अभी मैंने चॉपिंग करनी छोड़ दी, उसके बाद से मेरा टाइम बढ़ गया. अगर आपने एक मोड़ पे 1 सेकंड के लिए चॉप किया और आपकी स्टेज के अंदर 100 टर्न्स आए, ऐसे ऐसे 100 सेकंड, 100 बार आए, तो 100 सेकंड हो गए. अब 100 सेकंड का मतलब हो गया इट इज़ क्लोज टू अबाउट 2 मिनट्स. तो आप मतलब 2 मिनट के करीब पीछे हो गए. which is a big time. अच्छा, वेरी छोटी रैलीज के अंदर तो ये बहुत बड़ा टाइम होता है, वहाँ तो 15-20 सेकंड का फर्क होता है. So you have to like, you have to go like that. So ये साउंड है ना, आपके दिमाग में, एक रेसर के दिमाग में आता है कि एक तो होता है हमारा होता है so these sounds you know prepare you. और आप किसी भी रेसर से आप बात करोगे ना, so they actually, जैसे योगा में बोलते हैं ना पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, आँख बंद करो, सांस आ रही है, सांस जा रही है. तो हम जब रेस करें तो ये हमारे दिमाग में चल रहा है ये आवाज़ कि यार नहीं, स्लो है, ऐसे जाना है. तो सारेगामा ठीक से नहीं पड़ रहा. एब्सोल्युटली. सरगम बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो आपका फजीता हो जाएगा. This is going to go in the reels actually with the expression that you had. अच्छा, all right. So when you come back, Yeah. after either you had a podium or not had a podium, how do you unwind yourself? So I don't unwind myself. I keep wounded up. Okay. I'm always on a high when I ride my bike. तो क्या होता है, मेरे को रेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता. रेस खत्म हुई, बाइक को किया, 1 हफ्ते आप आए, इतना टाइम लग जाता है, बाइक उतरी, उसके बाद then the practice again start, back to the same thing. we start practicing every Saturday Sunday is my ride day. मैं जाता हूँ और मैं प्रैक्टिस करता हूँ. ब्रेक अगर लेना इसलिए पड़ सकता है, या तो कोई इंजरी हो जाए या बाइक में कुछ ऐसा डैमेज हो कि उस पर काम करना पड़े, नहीं तो वी कंटिन्यू टू राइड. और जहाँ तक पोडियम का सवाल है, तो अभी तो पिछले 3-4 साल से तो आई एम गेटिंग पोडियम. तो एक हाई होती है व्हेन यू गो देयर एंड, और अच्छा लगता है कि व्हेन यू आर कॉम्पीटिंग. एक्चुअली आई कॉम्पीट विद माई सेल्फ. I don't compete with anybody. I am just trying myself how good I can be.
और मैंने एक चीज़ करी है कि पिछले जितने साल से मैं राइड कर रहा हूँ, आई हैव कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड. नाउ व्हाट इट मीन्स इज, पहले मैं चलाता था ग्रुप डी. सो देयर आर 4 कैटेगरीज, Okay. ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, डी. उसके अंदर सब कैटेगरीज होती हैं. अब ग्रुप ए के अंदर होती हैं ओपन कैटेगरी, ज़्यादातर इसमें इंपोर्टेड बाइक्स होती हैं. ठीक है. उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी की 250 सीसी, 450 सीसी, 400 सीसी, 300 वडेवर. Okay. ठीक है. फिर होती है बी, Mhm. इंडियन बाइक विद इंपोर्टेड मॉडिफिकेशंस. Okay. जैसे आपने KYB का सस्पेंशन डाल दिया, KNN का फिल्टर डाल दिया, ये सब इंपोर्टेड है पार्ट्स हैं. Mhm. व्हील डाल दिए आपने, एक्सेल के रिम डाल दिए, यू नो, ऐसा कुछ डाल दिया. ठीक है. जैसे मैं बाइक चलाता हूँ तो मेरी बी कैटेगरी है. अब बी कैटेगरी के अंदर भी क्लासेस होती हैं. एक क्लास होती है 450 सीसी, मतलब 250 से 450, Mhm. और एक होती है 170-80 से, मतलब डिपेंडिंग ऑर्गेनाइजर कैसा है. तो मैं चलाता हूँ ग्रुप बी के अंदर क्लास 2, Okay. विच इज़ अप टू 250 सीसी कैटेगरी. जबकि एक्सपल्स है 200 सीसी, 211 सीसी की बाइक, 210 सीसी की बाइक है, 211. Okay. ठीक है. और मैं चलाता हूँ उसको 250 सीसी की कैटेगरी के अंदर. फिर आती है सी. सी इज़ इंडियन बाइक, इंडियन मॉड्स, Okay. करॉल बाग टाइप के मॉडिफिकेशन बिल्कुल, आपने डाल बिल्कुल. रखे हैं, देसी वो डाल दिया, किसी का मॉडिफाइड. और फिर डी होती है स्टॉक बाइक, अच्छा. OEM, No changes. ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, वही पार्ट होंगे. उसमें 2-3 चीज़ें FMSAI की रेगुलेशन के हिसाब से आप कर सकते हो. जैसे सेंटर स्टैंड हटा सकते हो. हमारी बाइक में सेंटर स्टैंड का कोई काम नहीं है, वो आप हटा सकते हो. हैंडल आप शायद चेंज कर सकते हो, आई एम नॉट रिमेंबरिंग एग्जैक्टली, वो कर सकते हो. ये कुछ चीज़ें, टायर्स आप चेंज कर सकते हो, बट व्हील रिम चेंज नहीं कर सकते. समझ तो गया. ये कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्री होती हैं. बाकी कैटेगरी वाइज होता है. तो आई हैव कॉन्स्टेंटली फ्रॉम डी आई मूव टू सी, सी आई हैव मूव टू बी, बी फ्रॉम क्लास 3 or 4 I moved to class 2. Now my next aim is A, group A. Okay. So Open category which imported bike bike. do you want to drive there? So that's Which my is- bike. That's a KTM EXE 450. Mhm. That's a hardcore rally bike जो डाकार वगैरह के अंदर चलाते हैं. ठीक है. अगर मैं इंडिया में ये बाइक मंगाऊंगा तो ये नई बाइक मेरे को 14 लाख के आसपास की पड़ेगी, Okay. 14 लाख. और प्लस इसकी मेंटेनेंस बहुत हाई होती है, बिकॉज ये किलोमीटर के हिसाब से नहीं होती मेंटेन, ये टाइम के हिसाब से होती है. अच्छा. 4 घंटे बाइक चल गई, अब इसका सर्विस आ गया, या जो भी इसका टाइम है, Oh. इट्स लाइक दैट. हाँ, Okay. 8 घंटे चल गई बाइक तो आपको बहुत आपका टेक्नीशियन हैज टू कीप अ ट्रैक. आप ट्रेल पर गए थे, आपने 2 घंटे वहाँ चलाई, फिर 2 घंटे से 10 घंटे हो गए, अब बाइक की सर्विस ड्यू है. Oh, wow. सो हाँ, that's That's a different thing to know. हाँ, नॉर्मली तो होता है ना 5,000 रुपये पहली हाँ, सर्विस, किलोमीटर 10,000 पे रुपये, होता वो है. इसमें किलोमीटर का नहीं होता. अब मेरी बाइक टोटल जो मेरी अभी रैली बाइक जो मैं चलाता हूँ, जो एक्सपल्स, वो 7,500 8,000 चली है 2 साल में सिर्फ. और सब रोड पे नहीं चलती हो, हाँ, वो तो सिर्फ प्रैक्टिस और रेस में चलती है. और उसमें मैं इंजन ऑयल, मतलब मेरा इंजन ऑयल हर तीसरे चौथे महीने चेंज होता है. irrespective of the kilometers run. नो, बिकॉज आई हैव टू, बिकॉज यू आप बाइक को पेल रहे हो, इतना चला रहे हो, तो आपको उसको खुराक भी अच्छी देनी पड़ेगी. वो OEM के हिसाब से नहीं चल सकता कि सर्विस मैनुअल में लिखा है, बिकॉज सर्विस के हिसाब से तो बाइक ही नहीं है, पहचान ही नहीं सकता उसको देख के कोई ठीक है. कि ये वो It's बाइक no है. more the old bike. No, not at all. It's absolutely customized as per my need. Okay. Now, you have been driving within the cities, within the states. You have been a solo driver also, and preferably the solo driver, but you've gone in the groups also. Yes. So, how do you prepare yourself? क्योंकि वहाँ पे ना जब आप ग्रुप में जाते हैं, तो it's not you who have to decide कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है. जब आप एक ग्रुप में होते हैं, maybe 10 or 15 or 20 whatever people are there, how do you communicate with each other? That's the first question. And how do you manage with each other? क्योंकि वहाँ पे सब एक ईगोज लेकर अपने साथ में सब आते हैं. Correct. ठीक है ना. हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ विद दोस अनदर 10 15 20 पीपल. और जब आप जा रहे हैं तो कुछ सिग्नल्स होते हैं कि चलते चलते भी, क्योंकि फोन तो कर नहीं सकते हैं, Gestures, indications. जेस्चर्स होते हैं, इंडिकेशन, वो क्या होते हैं वो अगर आप बता दें. Yeah, sure. So पहला तो आपके ऑडियंस के लिए मेरा ये सजेशन है कि जब आप किसी ग्रुप में जाए ना, तो उस ग्रुप को स्टडी करें कि वो आपके लेवल का है कि नहीं है. ठीक है. सिर्फ मूर्थल में पराठे खाने के लिए राइड करना है तो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया. और उसके लिए ग्रुप की भी जरूरत नहीं है. ग्रुप की भी जरूरत नहीं, आप किसी को दोस्त को पकड़ो. अगर आप ग्रुप में राइड करते हो, मूर्थल भी जाते हो, तो दैट ग्रुप शुड बी वेरी होमोजीनस, हम्म. कंड्यूसिव होना चाहिए एक दूसरे के ख्यालों से, और मैच होना चाहिए.
सड़क के ऊपर स्टंट करना, वो करना, कोई तेज चला रहा है, कोई दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. सो एक फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए. अब उसमें ईगो नहीं आनी चाहिए. अब राइड कैप्टन इज अ राइड कैप्टन, चाहे वो मेरे से छोटा हो बड़ा हो, डज नॉट मैटर. अगर ठीक राइड है. कैप्टन को रास्ता पता है, वो ले जा चुका है पहले, ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. Okay. फिर आपका विंग मैन होता है पीछे जो रहता है, जो देखता है कि ट्रैफिक में कोई तो नहीं जा रहा, खाली कराना रोड, मतलब रोड पर कोई किसी को डैमेज ना कर दे. तो फिर टेलिंग करते हैं कुछ लोग जो लास्ट में आते हैं, ताकि भाई अगर हम 40 बंदे चले थे या 20 चले थे तो 20 हैं कि नहीं है. कोई पीछे ना छूट जाए या करेक्ट. तो problem. पहला सिद्धांत होता है जब आप ग्रुप में राइड करते हो, तो यू शुड नो हाउ मेनी पीपल आर देयर. Okay. You have to define and understand people by their capabilities. You should not have the slowest person in the front, neither you should have the slowest person in the end. Okay. Slowest person can be somewhere in the middle. You should have a good rider, I'm not saying fast rider, but a good rider in the front, जो डिस्टेंस मेंटेन कर सके और देख सके अगर उसकी वजह से ग्रुप बहुत नज़दीक आ रहा है तो थोड़ा सा फास्ट जाए ताकि खुल जाए. और बिकॉज राइडर टू राइडर देयर शुड बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट 10 meters. Okay. भाई किसी की बाइक कुछ हाँ, प्रॉब्लम आ गई, ब्रेक ब्रेक लगाना पड़ा, लगाया. कोई कुत्ता बिल्ली, हिंदुस्तान है, कोई भी आ सकता है. ये वो आइल ऑफ टीटी तो है नहीं कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, शहर में से चला रहे हो आप बाइक. तो वो ध्यान रखने के लिए 10 मीटर तो कम से कम चाहिए. थर्ड पॉइंट इज दैट देयर शुड बी अ विजिबल कम्युनिकेशन. नाउ व्हेन आई से विजिबल कम्युनिकेशन, इट बी विजिबल कॉन्टैक्ट. आई शुड नो मेरे पीछे कौन है एंड आई शुड नो मेरे आगे कौन है. ठीक है. ठीक है. उस वाले को पता होना चाहिए उसके आगे कौन है, मैं हूँ, और उसके पीछे कौन है. अगर हम अपने आगे एक और अपने आगे पीछे एक बंदे का ध्यान रखेंगे, देख रहे होंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आप ग्रुप टूटेगा या छूटेगा या अलग अलग हो जाएंगे. उसके बाद टर्न्स वगैरह जो मोड़ आते हैं, कई जगह में थोड़ा सा इतने वो नहीं होते हैं क्लियरली मार्क्ड, तो वहाँ पे इट इज़ गुड कि विंगमैन या जो चल रहा है, जो इंडिकेटर है, बंदा खड़ा है, वो रुक जाए वहाँ पे एंड लेट अदर्स गो. सो ही हैज़ टू बी द फास्टेस्ट गाय, बिकॉज उसको फिर अपनी पोजीशन पकड़नी है लास्ट में जाके, या बीच के अंदर जाके, या जहाँ पर भी उसकी पोजीशन थी. सो इसलिए लास्ट वाला जो है वो बहुत फास्ट राइडर होना चाहिए, और शुरू वाला जो है वो बहुत अच्छा राइडर होना चाहिए. बीच में यू कैन हैव अ मिक्स ऑफ पीपल. नाउ कमिंग टू इंडिकेशंस. अब इंडिकेशंस जैसे होते हैं कि जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, सो दिस इज़ योर थ्रॉटल एंड दिस इज़ योर क्लच. ठीक है. सो आइडियली आप थ्रॉटल नहीं छोड़ सकते, बिकॉज यू अगर आप मैं हाथ देने लगा ऐसे क्लच दबा के, तो मेरा थ्रॉटल छूटेगा तो बाइक की स्पीड कम हो जाएगी. सो आइडियली आपने मान लो 50 की. अब ये एक चीज़ और है, मैं भूल गया बोलना, कि आपको एक मेंटेन करनी है स्पीड के, बोलना है ग्रुप को भाई 60 से ऊपर कोई नहीं चलेगा, 70 से ऊपर कोई नहीं चलेगा, या हाईवे पे चल रहा था 80 से ऊपर, जो भी आपकी स्पीड है उससे ऊपर कोई नहीं जाएगा. सो दैट एवरीबडी नोज कि हमारा जो विंडो इतनी है, 60 से 80 के बीच में हमने रेव करना है. So that they are part of the group. So that they are part of the group, they are more cohesive. आपने इंडिकेशन करना है तो this is my suggestion. Use your left hand, all right, so that people your speed doesn't break and you have a proper indication. When you indicate, raise your hand above your shoulder so that people can see. अगर मैं यहाँ से कुछ करूँगा तो शायद दिखाई नहीं देगा पीछे. So this means rows of 2. So now make 2 rows because the road is wide now and you can be in 2 rows. Now this is single, that come in a single row. This is like if somebody is trailing behind me, so I indicate, I'm using this hand just to give a better view on the camera. Ki this is to, like, you come fast, okay, you're slowing down, you come fast. And अगर मान लो मैंने कुछ देख लिया रास्ते के अंदर, कुछ प्रॉब्लम है, अब गड्ढा इस तरफ है, तो आई कांट शो विद दिस हैंड, तो आई हैव टू यूज दिस हैंड एंड आई शो कि प्रॉब्लम देयर, मतलब बी केयरफुल, देयर इज समथिंग. तो इस तरह के कुछ वो होते हैं. बाकी आई लीव इट टू योर ऑडियंस कि वो बताएं कि 5-6 और 10 तरह के, बिकॉज बहुत सारे सिग्नल्स बने हुए हैं. हर ग्रुप के अपने पैरामीटर्स या वो कुछ तो फिक्स्ड है, और कुछ जो होते हैं वो बना रखे हैं कि भाई उनको पता रहता है आपने ऐसे किया, इसका मतलब है कम फास्ट, ऑलराइट, दिस मीन्स मूव फास्टर, दिस मीन्स स्लो, दिस मीन्स स्टॉप. Okay. This means stop. When you're raising your hand and you're making a fist, it means stop. There is some problem. So stop. Or we are taking a break. Whatever. तो इस तरह के बहुत सारे हैंड जेस्चर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं. गुजरात के अंदर मैंने देखा लेग जेस्चर भी यूज़ करते हैं लोग. उन्होंने लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, तो पाँव निकाल देगा ऐसे करके कि मैं इधर, हाथ नहीं लगा हिलाते. अच्छा. हाँ, आई एम नॉट अगेंस्ट गुजरातीज, बट ये मैंने देखा है. तो वो अहमदाबाद और सूरत के अंदर तो वो हाथ नहीं यूज़ करते. इंडिकेटर में तो टाइम लगता है बेचारों को चलाने में, काफ़ी इसमें वो है ना, प्रोसेस इन्वॉल्व है. तो इंडिकेटर में वो ऐसा सोचते हैं. अच्छा, ओके. तो दे यूज देयर लेग्स एंड पाँव बाहर निकाल लिया तो पीछे वो
बंदा जो है उसको मालूम है ये राइट मुड़ेगा, हमें नहीं मालूम, अच्छा, क्योंकि ये तो कोई यूनिवर्सल सिग्नल ही नहीं है। सिग्नल ही नहीं है। तो ये तो हमने देखा है, बट ये तो देखा नहीं है वहाँ ऐसा चलता है, कई जगह में होता है ऐसा। हर एक का अपना, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। Yeah, and rear view mirrors is another thing which is important. Like I said, कि visual communication and visual contact is very important. तो बहुत सारे लोग हैं वो rear view mirror को मोड़ देते हैं, हाँ, या कई लोगों को मैंने देखा है वो rear view में होते हुए भी पीछे देखते हैं कि कौन आ रहा है। तो lot of time I stop and tell them, भैया ये तूने शीशे लगा रखे हैं, इसमें देखना, यूज तो करो उसको। because उनको आदत नहीं है। So and they are not confident कि शीशे में जो दिख रहा है वो सही है कि नहीं है, because habit नहीं है। डिस्टेंस नहीं पता चलती है। So you have to तो- get used to it. हाँ, अब दैट हम- आई एग्री। तो वो इसलिए है क्योंकि वो जैसे आप प्रैक्टिस करने जाते हो, सो दे डोंट प्रैक्टिस, दे जस्ट टेक आउट द बाइक व्हेन इट्स नीडेड। Correct. तो उन्हें पता ही नहीं है अपने बाइक, सो बाइक एंड बॉडी इज नॉट वन, Yeah. एज यू मेंशन, Sync में नहीं है। सिंक में नहीं है, सो दे डोंट नो कि किसका कितना है। Correct. Yeah. आई थिंक दैट माइट बी रीजन। अब एक मेरा इसी से रिलेटेड है, बिकॉज ऑफ दीज ग्रुप्स व्हिच गो, आजकल एक ना पुलिस की वो चल रही है एक्सप्रेस वे पे, एंड पीपल आर डूइंग इट आल्सो। पुलिस बहुत विजिलेंट हो गई है कि जितना कहीं सुपर बाइक दिखी उसको पकड़ लो, उसको सीज कर दो, उसको रोक दो, बिकॉज वो तो स्पीडिंग करेगा ही करेगा। और एक्सप्रेस वे पे ज्यादा हो रहा है, और न्यूज आई थी अभी शायद नोएडा में बहुत ज्यादा पकड़े गए हैं हाँ, DND फ्लाईओवर पे। डीएनडी फ्लाईओवर पे। सो व्हाट डू यू हैव टू से कि मतलब इज इट अ राइट थिंग टू डू फ्रॉम द पुलिस साइड, और इज इट द राइट थिंग कि ये लोग गलत कर रहे थे तो पकड़ना ही चाहिए था? देखिए ऐसा है कि कई बार होता है कि गलत भी करते हैं लोग, और कई बार ये भी होता है कि शरीफ आदमी भी लपेटे में आ जाता है। ठीक है, अब वो सिर्फ बाइक चला रहा है और उसने कपड़े उपड़े ऐसे पहने, कोई बाइकर लगता है, कम्यूटर नहीं लगता, तो पकड़ लिया उसको कि ये तो। नाउ आई डोंट नो हाउ मेनी कॉप्स, कितने पुलिस वालों को ये पता है कि सुपर बाइक का मतलब क्या होता है। आई विल एग्री टू दैट। सुपर बाइक है क्या, है क्या? क्या कितने सीसी कितने से ऊपर CC? सुपर बाइक बोलते हो आप? दे मे नॉट नो। भाई जो आवाज़ बुलेट के अंदर भी अगर किसी ने थोड़ा एग्जॉस्ट बोल तो ये सुपर बाइक, इट्स नॉट अ सुपर बाइक। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सुपर बाइक। सो हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर बहुत सारी कवरेज नहीं है। टू शेयर विद यू एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ, शायद बहुत सारे Please. लोगों को मालूम भी नहीं होगा। Please. आप गाड़ी के अंदर एक स्टिकर भी लगाते हो ना, हम्म, इट इज़ इलीगल, डू यू नो दैट? ओके। जैसे मेरी गाड़ी पे तो स्टिकर भरे पड़े हैं, हम्म, तो वो भी अलाउड इट्स नहीं है। एज पर द लॉ, इट कम्स अंडर मॉडिफिकेशन। और India government खुद is- स्टिकर्स लगवाती रहती है कि पेट्रोल का लगाओ, अपना वो पेट्रोल डीजल वाला लगाओ। नहीं, वो तो गवर्नमेंट pollution के का स्टिकर लगाओ। हो गए, वो तो गवर्नमेंट के स्टिकर्स हैं कि आपका पीयूसी हुआ है कि PUC, नहीं हाँ। हुआ है, या रजिस्ट्रेशन नंबर का स्टिकर, वो नहीं बोल रहा मैं। अगर आप बॉडी के ऊपर कोई स्टिकर लगाते हो जैसे रेसिंग या मॉन्स्टर या कुछ भी इस तरह का कुछ भी स्टिकर, लगाए। आपने अपना नाम भी लिखवा लिया, ब्लड ग्रुप लिखा लिया, सो एवरी स्टिकरिंग विच यू डू ऑन अ व्हीकल tantamounts to modification, ओके। which is not the right law. हमारे ये अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पुराने के लॉ हैं। These law need to change. Now अभी जैसे एग्जांपल के लिए ये गुड़गांव, ये जो है अपनी गोल्फ कोर्स रोड है, ये एक्सप्रेस वे बनी थी। बिल्कुल, एक्सप्रेस का मतलब होता है एक्सप्रेस, तभी वो अंडरपासेस बने थे Fast. कि हाँ, फास्ट। अब वहाँ उन्होंने स्पीड ब्रेकर लगा दी, वहाँ 50 की लिमिट कर दी, तो उसका पर्पस क्या हुआ? सो समवेयर द पुलिस ऑल्सो हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट वेयर विल पीपल राइड। हमारा कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम बोलें चाहे कुछ भी है तो थर्ड वर्ल्ड ही। हमारे पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं बाइक चलाने के लिए? क्या बंदा हमेशा BIC जाएगा? BIC में 2 दिन के 15,000 रुपये लगते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन अफोर्ड दैट? 15,000 रुपये 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे की राइड के आपको इतने पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पे टू यूज़ इट। ओके। जाते हैं लोग, जाते हैं प्रोफेशनल्स हैं, लोग, जाते हैं, बट हाउ मेनी पीपल कैन अफोर्ड दैट? एंड इफ़ यू हैव अ बिग बाइक, मैं सुपर बाइक की भी बात नहीं करता, आपके पास 650 सीसी 400 सीसी की भी बाइक है, इवन दे रीच अप टू 160 70 80 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो वो कहाँ चलाएंगे उसको? तो या तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि कुछ जगह ईयर मार्क करे, जैसे साइकिलिस्ट के लिए है गुड़गांव। सेकंड केस ये भी है ना, जो BIC जाने के लिए भी जाना तो रोड से ही पड़ेगा ना। करेक्ट, नहीं चलो एक बार रोड पर वो आप भी- 80 की स्पीड पे चले गए, बट वहाँ जाके आप चला सकते हो। सो आइदर दे मेक इट अफोर्डेबल फॉर द पब्लिक, True. दे हैव मोर फैसिलिटीज, और दे ईयर मार्क। जैसे राहगिरी आपने सुना है, बिल्कुल। टाइम्स ऑफ इंडिया ने राहगिरी शुरू किया था कि भाई रिक्लेम द रोड्स, तो रोड्स को बंद कर देते हैं और साइकिलिस्ट और पैदल चलने वालों के लिए रोड बंद हो जाती है। सिमिलरली मोटरसाइकिलिस्ट के लिए आप एक पैच ईयर मार्क कर दो कि भाई जो जिन्होंने बाइक चलानी है यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये करना पड़ेगा कि आपको एम्बुलेंस और इसका फैसिलिटीज रखनी पड़ेंगी। रखनी पड़ेंगी या हम देंगे, एंड यू कैन पे फॉर। आई डोंट थिंक एनीबडी विल माइंड। एब्सोल्युटली।
और या इन्फॉर्म ही कर सकते हो आप सिर्फ, और आपके पास इंश्योरेंस और आरसी या पेपर्स होने चाहिए, बाकी आप चलाइए। तो दैट सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट, मतलब ये एक पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप जब तक नहीं होगा ना, मेरे को लगता नहीं है कि, नहीं तो क्या फ़ायदा कि कोई इंसान है वो इतनी महंगी मोटरसाइकिल लेता है 30 लाख 40 लाख 50 लाख की, और वो उसको यूज़ ना कर पाए तो। और कोई 30-40 लाख की लेता है ना, तो एक बेसिक अपना जो अभी आपने पूरे ड्रेस बताया था वो भी साथ में लेता है। एब्सोल्युटली 30 लाख के ऊपर उसको 1-1.5 लाख रुपए के ऊपर ड्रेसअप करना, 2 लाख इज नॉट अ बिग थिंग। करेक्ट। अब वो पहन के जा रहा है तो रेसर कैटेगरी में आ जाता है। अब जैसे कम्युनिकेशन की बात हो रही थी, आजकल ब्लूटूथ डिवाइसेस आ गए हैं, बिल्कुल। सो लोग हेलमेट में ब्लूटूथ लगाते हैं, बात भी कर लेते हैं आपस में कि भाई कहाँ पे जाना है, किधर हो तुम, कौन क्या। तो कम्युनिकेशन इज बिकम ईजियर नाउ, इट इज़ नॉट ओल्ड डेज। नाउ थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ कम टू हेल्प, आपके पास जीपीएस है, आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक दोनों तरफ से ये ज़रूरी है। लोगों को मिसयूज़ भी नहीं करना चाहिए रोड को, ये नहीं कि रेड लाइट पे गया तो वहाँ रीली मार दी, एंड अननेसेसरली आप अट्रैक्ट करते हो क्राउड को। आप वहाँ कर लो जहाँ पे कोई ना हो, फिर अननेसेसरली भीड़ में जाके इस तरीके से करना, यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि ये दोनों तरफ से ज़रूरी है। ये पुलिस के लिए भी मेरी तरफ से एक सजेशन है कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं एट द हायर लेवल, दे शुड थिंक अबाउट इट, बिकॉज उनमें से भी कुछ बाइकर्स होंगे, डेफिनेटली। यंगस्टर्स भी होंगे, यंग आईपीएस ऑफिसर्स हैं हु आर नाउ एसपीज डीएसपीज। तो they should, I think, work on this and do something about it. So, when you were talking about this, police should be aware about these things. So, you are official with FMSI. They Yes. majorly take care of the motorsports events, bikes event and other. But वहाँ से कोई एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं बन सकता है, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द एसोसिएशन, कि वो इन पुलिस फेटर्निटी को भी एक्सप्लेन करे कि व्हाट इज मोटर स्पोर्ट्स, व्हाट आर सुपर बाइक्स, या इनको एजुकेशन का एक प्रोग्राम बनाए। Okay, so see, FMSCI, आपके audience के लिए, those who don't understand, FMSCI है please. Federation of Motorsports Club of India, Mm-hmm. and it is related to FIA, Federation, मतलब that is in, I think, Spanish, or I'm not sure, or maybe French, Federation International Automobile, Mm-hmm. FIA. So it is related to, or it's a body, it's part of that, it's the umbrella body. इंडिया के अंदर इट इज एफएमएससीआई जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट होते हैं ऑटोमोबाइल्स के, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, पोलारिस, बगीज, उनके इवेंट वो ऑर्गेनाइज करते हैं। सुपर क्रॉस, मोटो क्रॉस, रैलीज, रेसेस, क्रॉस कंट्री, ये सारे इवेंट वो लोग उनके ही एजेस में होता है। नाउ एज फार एज उनका और पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन है, अनफॉर्चुनेटली नॉट टू माय माइंड, because I am new in FMSCI. I've been there for about 2.5-3 years now. तो मैंने नहीं देखा है, बट होना चाहिए कि the police जो senior officials हैं, they have an interaction with them and understand. Because I won't name, there was a motorsport athlete who got into a big problem because of a crash. Mm-hmm. And it was not the fault of the driver. It was people who barged onto the track, and fatalities happened. Mm-hmm. So the driver, because see, if I am racing, I am at my top speed. अगर मैं 100 की स्पीड पे यहाँ ब्रेक मारता हूँ, मैं बाइक की बात करता हूँ, कार का तो मैं ड्राइव करता हूँ, बट आई एम नॉट अ रेसर। बट अगर मैं बाइक की 100 की स्पीड पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ ब्रेक मारूंगा, तो बाय द टाइम माई बाइक कम्स टू अ कंप्लीट हॉल्ट, इट विल एटलीस्ट बी 20 मीटर्स, एटलीस्ट 20, 25, 30 मीटर्स पर जाके बाइक जो है वो कुछ रुकेगी। So if somebody comes in between, I think तो उस चीज की जो education, police should also have their presence, so that ऐसी eventuality ना हो। उनको भी बताना जरूरी है कि क्या permitted है, क्या FMSCI can tell, देखो हम ये regulations हैं, हम बाइक्स भी ऐसी परमिट करते हैं जो रैली रेसेस में जाते हैं, उनका नंबर प्लेट होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन प्लेट, हेडलाइट होना जरूरी है, इंडिकेटर होना जरूरी है, ब्रेक लाइट होना जरूरी है, हॉर्न भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी लेके चल देंगे, तो हम भी उसको फॉलो करते हैं। So similarly, you should also help us in promote the sport and promote a fraternity. अब प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर, हम अगर डाकार लेवल पे जाएं तो हमारा एक हारित नोआ जो है, जो कि एक्चुअली his father is German and mother is from Kerala, and he's born and brought up in he was born in Germany, and most of the time he's outside and he's part of the factory team and he races and he was a Dakar winner. तो इंडिया से कितने निकले ऐसे राइडर्स या ड्राइवर्स? हार्डली एनी।
बिकॉज अब मेरे को देख लो, अब मैंने अभी 8 साल पहले कॉम्पिटिटिव राइडिंग शुरू किया और फॉरेन के अंदर वो 5 साल 7 साल के अंदर उनको फैसिलिटी होती है और वो चलाना शुरू करते हैं। एक्चुअली वहाँ स्पॉन्सरशिप्स मिलना एंड स्पॉन्सरशिप है, सपोर्ट फैसिलिटीज फ्रॉम द है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एग्जैक्टली यहाँ पे अगर ये हेलमेट है तो ये इंडिया में है नहीं। हमारी सरकार ने बनाया है कि भाई आईएसआई का हेलमेट होना चाहिए। अब आईएसआई के हेलमेट का हाउ कैन यू कंपेयर एन आईएसआई हेलमेट विद अ ईसी लेवल 2 और अ स्नेल और अ दिस थिंग डॉट हेलमेट? नो कंपैरिजन। no comparison like ISA in this No comparison means no comparison. Like this is far much superior. superior. और FMSA does not permit ISI helmet. Okay, अच्छा अगर इसके साथ ISI लगा होगा तो ठीक है, जो ओके, बट ये होना जरूरी है। ये होना जरूरी है। ठीक है। सांबर के साथ, मतलब डोसे के साथ सांबर तो चाहिए ही चाहिए। अगर वो लाल हरी चटनी अलग से मिल जाए तो ठीक है, नहीं भी मिलेगी तो कोकोनट चटनी और सांबर होना चाहिए। बिल्कुल। So it's like that. So this is compulsory. So EC सर्टिफिकेशन और इनके लेवल हर साल बढ़ते जाते हैं। अच्छा। जो मेरे पास पहले हेलमेट था वो अब मैं यूज नहीं कर सकता बिकॉज जो EC की स्पेक्स है वो खत्म हो गई, मतलब दे हैव अपग्रेडेड, नाउ दे वांट ऑब्सोलीट हो गए वो। या दिस इज नाउ आई थिंक 24.02 या 20 कुछ ऐसा इसकी वो है स्पेसिफिकेशन जो ये हेलमेट। अगर ये नहीं होगा तो अगर मेरे जैसा ऑफिशियल हेलमेट चेक करेगा आपका तो वो हेलमेट परमिट नहीं करेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, यू कैन नॉट राइड। तो ये FMSAI जो है, so event sponsored or maybe associated with FMSAI, so what does this fraternity do? So they give you the guidelines. How to conduct the race. जैसे मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, ठीक है, मैंने उनको बताया कि मैं इस डेट पे करूंगा, तो पहले तो वो अपना कैलेंडर चेक करेंगे कि उस पे कोई डुअल इवेंट तो नहीं हो रहे। कैलेंडर चेक कर लिया, दे विल अलॉट देम द डेट, ठीक है। फिर देन दे लास्ट व्हाट इवेंट इज इट, क्रॉस कंट्री है, सुपर क्रॉस है, मोटो क्रॉस है, रैली है, क्या है, तो वो बताएंगे उसको। ऑलराइट, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है आपके पास, मतलब कहाँ करा रहे हो, ओके। उसके बाद वो देखेंगे कि आपका कितना चैलेंजिंग है वो इवेंट। ऐसा तो नहीं लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, ओके, वो नहीं होना चाहिए। तो एक FMSA ऑफिशियल, जैसे हमारे एक बहुत सीनियर FMSA ऑफिशियल है गारचा साहब, शशिपाल सिंह गारचा, लाइक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ FMSA रिप्रेजेंटेटिव। तो वो जाते हैं, वो देखते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये खतरनाक है तो उसको कैंसिल कर देते हैं उस स्टेज को। अच्छा, ऐसा भी होता है बिकॉज स्क्रूटनी होती है तो उसके अंदर देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ना हो, कोई स्ट्रेच या लाइक जो है उस। तो ये सारा काम FMSA करता है। फिर FMSA का काम होता है स्क्रूटनी करना। स्क्रूटनी का मतलब है कि वो बाइक को चेक करते हैं कि ये, अब क्या होता है, एक समथिंग कॉल्ड होमोलोगेशन। इंडिया में आज की डेट में मेरे ख्याल 1000 नहीं तो कई 100 किस्म की मॉडल्स हैं बाइक्स के। यू टॉक ऑफ ट्रायम्फ, डुकाटी, हार्ले, होंडा, सुजुकी, यामाहा, KTM, दुनिया भर की ब्रांड्स हैं और दुनिया भर के उनके मॉडल्स हैं। रॉयल एनफील्ड को तो मैं गिना ही नहीं, TVS वगैरह। अच्छा। तो अगर हम उनको कैलकुलेट करते हैं, मतलब टोटल करते हैं, तो इट्स अ बिग नंबर। नाउ FMSCI has to homologate those bikes. They are homologated. Only after homologation they can participate in FMSCI affiliated rallies. Homologation as in? Homologation का मतलब होता है कि उन्होंने चेक कर लिया कि ये बाइक जो है ये हमारे हिसाब से FMSCI Good to participate है, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो नॉन होमोल, जैसे अभी ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 है, आई थिंक ये होमोलोगेट नहीं हुई है अभी, ठीक है। So maybe it Or another example, Harleys cannot be in that category. Yes, so there are वो homologate करते हैं और homologation उसके भी बहुत बड़े-बड़े मैनुअल में काफी पढ़े थे before I went for my official this thing exam. So I had to read a lot of books. Still, see, एकदम नहीं याद हो सकती, it requires years of experience and hands-on knowledge. But जो भी मेरे को याद है उसके हिसाब से, अब जैसे स्क्रूटनी का एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, which is also important for your spectators, so that they also, देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ as an instructor when I am doing my workshops, you can say no only if you KNOW no. Okay, that's interesting. You can only say no, you cannot challan me because you know he cannot challan you. अगर आपको पता ही नहीं है तो you will only, अरे देखो जी वो भी निकल गया जी मेरे को, हाँ, so you'll argue for something else. It's argument, it's not a discussion. So you have to KNOW to say NO. Aha, so both that's are interesting. No. Okay. So both are no.
नाउ इफ यू कैन टेल अ पुलिस वाला कि बॉस देखो इसका डीबी जो है ना मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से इतना होना चाहिए, मेरा 2,500 3,000 रुपये से ज्यादा नहीं है, सो डोंट चलान मी। पीयूसी दिखाओ जी। पीयूसी का ये जो है ना स्टेज 6 है, ये तो वैसे भी बाइक जब आप खरीदते हो 1 साल तक तो आपको पीयूसी की जरूरत नहीं होती। दूसरा ये वैसे ही स्टेज 6 अगर 1.5 साल भी हो गया है तो इट विल नॉट पोल्यूट। इसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है, इट विल नॉट पोल्यूट। अगर मैं जाके करा भी लूंगा 100 रुपए खर्च भी दूंगा तो वो चेक भी नहीं करेगा। बिल्कुल। दैट्स द ट्रूथ, दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस पीयूसी वाले जो कियोस्क हैं। तो इससे उनके समझ में आता है। अब जैसे मेरी बाइक है उसका नंबर प्लेट इतनी सी है, मैं वो नहीं लगा सकता, सरकारी नंबर प्लेट नहीं लग सकती, तो जगह ही नहीं है बिकॉज इट्स अ रेसिंग बाइक। अब मुझे पेट्रोल लगाना है, मेरे घर तो पेट्रोल डिलीवरी होगी नहीं, मुझे सर्विस के लिए भी ले जानी है, ठीक मुझे है। वॉशिंग के लिए भी ले जानी है। अब मुझे भी पुलिस वाला रोक लेता है, तो नाउ आई मीन बिकॉज आई एम एफएमएससी ऑफिशियल एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर देयर, आई टेल दैट कॉप सॉरी सी this is a racing bike, this is my iCard, this is my FMSA license, I'm a racer, I'm not racing on the road, I'm only taking it for fueling. Okay, ठीक है। You know, it's like कावड़ यात्रा, हाँ। कितने लोग होते हैं उसके ट्रक में? Is truck a public ferrying vehicle? No, but It's a goods vehicle. तो लोग कैसे चढ़े हुए? डीजे चला रहे हैं Are इस you पे तो। permitted to play music in the public? No, तो कैसे? So don't try and appease people in the name of religion or whatever, or community. Rather be rightful and mindful. But उसके लिए लोगों को to know is important, and FMSA I think has a big role to play if they can involve more people, educate riders and motorist community at large. I think that will go a long way. भी लोगों को पता भी चलेगा FMSA क्या, पता भी लगे FMSA करती है, और FMSA का buy-in बढ़ेगा। बिल्कुल। That's what I think. Exactly. That's what I think. Okay, so you are a biker. Yeah. And there are riders in the market. How do you differentiate between a biker and a rider? हाँ, मैंने ना बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो he's a biker, मैंने कहा no, he's not a biker, he's only riding a motorcycle. Okay. Alright? तो ये आपके ऑडियंस को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, यार ये क्या बोल रहे हैं, हम भी तो मोटरसाइकिल चलाते हैं, हम बाइकर नहीं है। नहीं, बाइक तो दूध वाला भी चला रहा है, बाइक तो डिलीवरी वाला भी चला रहा है, सारे चला रहे हैं, है ना? So the difference between a biker and a commuter or somebody who's riding a motorcycle is that the way his bike is done up, the way he's dressed up will tell you whether he's a biker or not. A biker will wear a good quality helmet. It will have good protection. The helmet is not worn out. ये नहीं उठेड़ा हो रहा है, strap ये वो खुला टोपा हुआ है। पहन लिया। हाँ, so he will have full protection. अब लोगों के अंदर एक है कि gloves, ठंड थोड़ी ना है। Gloves are not meant for to maintain the temperature Weather. of the hand. It is to when you have a fall. Most of the time, जो मैं road users की बात कर रहा हूँ, वो गिरते हैं तो रोकते हैं अपने आप को। अगर आपके bare hands होंगे तो नॉर्मली आपने देखा होगा हाथ की खाल निकल जाती है। बट बिल्कुल। आपके पास अगर ग्लव्स होंगे तो इट गिव्स यू अ लेयर एडेड प्रोटेक्शन। योर इंजरीज, आई एम नॉट सेइंग नो इंजरीज, बट योर इंजरीज आर रिड्यूस्ड। Reduced. Definitely reduced. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग। अब ये मैंने जैकेट जैसे पहनी हुई है, दिस इज अ राइडिंग जैकेट, ठीक है, इट्स नॉट अ ब्रांड एंडोर्समेंट, मुझे हार्ले ने कुछ नहीं दिया, इट्स जस्ट अ जैकेट व्हिच आई एम वेयरिंग। अब इसके अंदर वेंटिलेशन है, व्हेन इट बिकम्स वार्म आई ओपन इट अप सो इट इज वेंटिलेटेड। दूसरा जो मैंने नीचे कपड़े पहने हुए दे डोंट गेट डर्टी, देयर आर स्लीव्स हियर, आई वांट टू रिलैक्स, मेरी घड़ी पहनने से मेरी रिस्ट ब्लड टाइट हो रही है। सो अब मैं इजराइल में जब था, जब मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग करवा था कुछ, तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे मोटरसाइकिलिस्ट आर नॉट परमिटेड टू राइड अनलेस दे आर वेयरिंग प्रॉपर गियर। यहाँ चप्पल में भी चला लेते हैं। और चप्पल में मोटर व्हीकल एक्ट हमारा says very specifically you cannot ride an automobile in chappal or sandals. Oh really? Yes, that's a free bonus for your subscribers and audience. Yes, it is like that. आप कभी टेस्ट देने गए, जब जाते हो लाइसेंस के लिए, चप्पल पहन के चले जाना। अच्छा, रिजेक्ट हो जाएगा? You cannot. आइडियली रिजेक्ट हो जाना You चाहिए। cannot. ओके। शॉल ओढ़ के चला रहे हैं कई लोग। हाँ, ठंड है ना सर। सो अभी एक ऑटो वाला, उसके वो लहंगे हिल रहे, वो क्या वो पर्दे से लगा रखे, लाइक फड़फड़ हवा में कर रहा है। इट्स सच अ बिग रिस्क टू अदर पीपल। कोई ओवरटेक कर रहा है, किसी के मुंह पर आ गया, निकल गया, विजिबिलिटी वो हो गई। सो दिस इज अ बिग रिस्क। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ बाइकर एंड अ मोटरसाइकिल राइडर।
that he wears up not for show Mm-hmm. but to stay safe. He has all the things in his bike done up properly so that he doesn't have a problem. बारिश के लिए अलग तरीके से तैयार होगा, Mm-hmm. वो फ्लाईओवर के नीचे जाके खड़ा नहीं होगा. अच्छा. जैम क्यों लगते हैं बारिश में आपको पता है? हाँ, वो तो सारे फ्लाईओवर के नीचे होते हैं, कौन तो खड़े सारे होते हैं वहाँ पे? बाइकर्स ही होते हैं, क्यों खड़े टू होते हैं? व्हीलर्स होते हैं. बाइकर नहीं खड़े होते हैं वहाँ पे. हाँ, मोटरसाइकिल राइडर्स होते हैं, राइडर्स सॉरी, राइडर्स होते हैं. वो क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि एक तो उन्होंने वेदर फोरकास्ट नहीं देखा, ठीक है. नाइदर उनका गियर ऐसा है, और थर्डली उनको आता ही नहीं कि बारिश में कैसे, अरे बारिश होगी तो होगी, क्या हो गया, कीप गोइंग. और अगर आप परेशान नहीं है तो यू कांट स्टैंड अंडर द फ्लाईओवर एंड ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रैफिक. अ राइडर विल डू दैट, बट अ बाइकर हु नोस will never stop there. You will not find a biker. He may still be dressed up like a biker, but he does not know the ethics of biking. He will never stop there. Okay. So that's the That's- difference. So that is the difference between somebody who is a biker by heart, or rather somebody who rides a motorcycle. That's the difference. Okay, that's interesting actually. So I should, okay, देखता हूँ अपने आप को क्या बुलवाना है. Yeah. Okay, so you mentioned in the start that on the weekends you go for your practice. Yeah. So is it so my question is that mentally also and as per the bike also, what kind of a difference is there when you're driving off-road and when you're driving on-road, which is tarmac? एक बात तो बड़ी सिंपल और स्ट्रेट है, And which one you love the most? और बड़ा सत्य वचन है. If you ride off road, you will become a better on road rider. Okay. Because हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से अगर 50% नहीं तो कम से कम 30-40% सड़कें ऑफ रोड ही हैं. ठीक है. गुड़गांव ठीक है. is not what we see. हाँ. गुड़गांव is other part of गुड़गांव also. यहाँ पे आप उधर चले जाओ, साउथ पेरिफेरल रोड चले जाओ, या शीतला माता रोड चले जाओ, या ओल्ड गुड़गांव के अंदर चले जाओ, इवन न्यू गुड़गांव, सड़कों का बुरा हाल है. बुरा टूटी हाल पड़ी है, बारिश हो जाती है, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, बहुत बार हाथ मुंह टूटता है लोगों का. सो off-roading, if you have an off-roading practice, you will become better on-road. That I always tell people, and I give lessons also to people who want to learn. So, off-roading, yes, we practice on weekends because या छुट्टी का भी बीच में हो गई, तो तब भी चले जाते हैं राइड के ऊपर. And our practice session lasts about 3 to 4 hours. और उसमें हम राइड करते हैं, हार्डकोर राइडिंग करते हैं. हम सड़क पे नहीं चलाते because our genre is off-roading, and of course I love off-roading more than road riding. But I have a KTM also. It's a road bike, and I love to ride. जब तक मैंने हेलमेट पहना और मैं जब बाइक चला रहा हूँ, लोग मेरे को कहते हैं, लौंडा देखो कितनी तेज चला रहा है. क्या बात है. उन्हें क्या पता है? Call us up. I'm zipping at 120, 130 करके निकल गए. I'm not saying कि I do ride. I never ride rash. I ride fast. I ride very fast. But there's a difference. रैश राइडिंग और फास्ट राइडिंग में बहुत फर्क होता है. ये लोगों को समझना. रैश मतलब देखा ही नहीं, यहाँ ले गए, zigzag चला रहे हैं. बट मैं बहुत बार जब गाड़ी में होता हूँ तो मैं रोक के बोलता हूँ, मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, उसके बाद मैंने कहा बॉस तू आज जिंदा है ना, ये तेरे हाथ पाँव नहीं टूटे तो इस वजह से नहीं टूटे कि तू ऐसे ऐसे अच्छी चला लेता है, तो इस वजह से चला पा रहा है ये अच्छी, क्योंकि तुझे पता है कि मैं ऐसे नहीं चलाऊंगा. मान लो तूने बाइक ऐसे चलानी शुरू कर दिया, मैं भी गाड़ी ऐसे चलाने लगा, तू चलाएगा? तुझे पता है अपनी लेन में रहेगा, इसलिए मैं यूं जा सकता हूँ. So makes sense. So that's what I tell them. मैंने कहा जगह देखो कहाँ पर है, and always maintain that safe distance, and then don't be stupid. तो ये कुछ चीजें होती हैं which I love on road also. I have done like Gurgaon to Goa solo. बाइक लेके मैं चला गया था. It's a different feeling क्योंकि आपको कोई ज्यादा रोकना नहीं पड़ रहा, कोई किसी को कोऑर्डिनेशंस कम करने पड़ रहे हैं. किसी को पानी पीना है, किसी को सिगरेट पीनी है, तो ये चले जा रहे हो 200-250 किलोमीटर चला लिया, उसका ब्रेक ले लिया, चलो ठीक है चाय पी लेते हैं, कहीं भी रुक गए, तो वो एडवांटेज रहता है. बट ऑफ कोर्स ऑफ रोडिंग के अंदर आई नेवर गो अलोन बिकॉज आई हैड अ हाई साइडर होता है जब पिछला आपका व्हील उठ जाता है, गोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड, योर फ्रंट वॉशेस आउट, रियर ऐसे कर दिया, एंड देन द बाइक टॉपल्स. सो आई ब्रोक माय शोल्डर जॉइंट एंड 3 ribs. This happened 3 years ago. Okay. But I continued to ride, and after that, like operation हुआ मेरा, it was a major surgery which happened, but it did not stop me. Rather, I'm going more faster now.
So you learn and you have to pay a price. Everything comes at a price. तो ये प्रिपरेशन तो ऑफ रोड की तो हम पूरा गियर लगा के जाते हैं, बिना गियर के हम एंटरटेन ही करते किसी को. अगर कोई आ गया ऐसे जी मैं जीन्स पहन के आ गया मेरे पास ये नहीं है तो बोलते हैं भाई तू वापस जा, ऐसा बेटर नहीं है. जा सकते आप. तो अभी who's going to carry you back, because we know what can happen. So what kind of a satisfaction that you get, because आपने कहा कि इंजरी भी हुई, then also you're back on the track. So what kind of a satisfaction that you get while driving the bike? एक भक्त से पूछो जो मंदिर जाता है ना, उसे भगवान दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बट उसको कितना अच्छा लगता है वहां पे. उससे बोला उन्होंने भगवान को देखा है. नहीं, मतलब मेरे सेंटेंस का वर्ड वर्बैटम जाओ, भगवान को देखा है, नहीं देखा तो फिर क्यों आते हो, Satisfaction मिलता है. है ना. So it's like that. I'm not comparing motorcycling with Obviously not. spirituality, but I think it is no less. अभी मेरी बाइक मॉडिफिकेशन के लिए गई थी, मैंने कुछ काम कराया बाइक में, एक हफ्ते के बाद आई, जैसे मेरा टेक्नीशियन बाइक लेकर आया, बाइक देख के मेरा हाँ, posture खून ही तेज ऐसा हो दौड़ना गया. शुरू हो गया. जैसे ही मैं सैडल पे बैठा और बाइक को थ्रॉटल दिया, बूम, स्पीड ब्रेकर पे ऐसे गई ना जब, आई फेल्ट सो गुड. सो एवरी हाई यू टेक विद योर बाइक, इट गिव्स यू अ वेरी हाई इन योर लाइफ. Okay. It's like that. Every turn which you take gives you a better control of various turns in your life. Every speed you maintain, every high speed you maintain is the milestone you achieve in your life. So वो एक फीलिंग होती है. और इसको समझाना बड़ा मुश्किल है. एक बुक है जेन ऑफ मोटरसाइकिलिंग, और बहुत सारी बुक है. अगर आप शे गुवारा की पढ़ो, उसके बारे में पढ़ो, that he rode all across America on a motorcycling, treating people and all that. तो वो एक रेनेगेड और उसके साथ अटैच करते हैं गेट अवे की फीलिंग, बट आई फील इट इज मोर देन दैट. इट इज इट्स मैं क्या बताऊं उसको, मतलब एक अलग ही हाई होता है. Unexplainable satisfaction. अभी मैंने एक अपने व्हाट्सएप स्टेटस डाला, उस पे लगा डाला था मैंने, मोटरसाइक्लिंग इज इक्वल टू एक्सटेसी. Yeah, I saw that. So it's an ecstasy. It's a very high level of happiness which you get. So it's like that. जैसे बच्चे को कोई खिलौना दे दो, या किसी पेटू आदमी को लड्डू दिखा दो. So I can very well see it on your face actually. So, yeah, the kind of अब ये जैसे बाइक है, अब इसको मैंने चलाया भी हुआ है इंडिया में. मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास ये बाइक्स हैं, तो इट्स एक अलग ही मतलब वो होता है. एवरी टाइम यू सिट ऑन द बाइक, आई थिंक मेरे वो हुआ था जब शोल्डर इंजरी हुई थी, तो मेरा ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर से मैंने बोला, मैं डॉक्टर आफ्टर हाउ मच टाइम कैन आई स्टार्ट राइडिंग. saying why are you talking about it? South Indian guy, why are you talking about riding? Relax. पहले चलना I'll तो tell you 6 months you will see. जब मेरे एक 21 दिन के बाद मेरे स्टिचेस कटे थे, या कुछ ऐसे 20-21 दिन के बाद, तो जब स्टिचेस निकले तो मैंने बोला नाउ कैन आई राइड. कहता यू रिलैक्स. 6 months बोला है ना. बट आफ्टर 30 days 28 days I was on my bike. I was not riding hard, but I was sitting on the bike and I was riding and I was feeling very good. मेरा हाथ उस टाइम यहाँ तक इतना नहीं जाता था, क्योंकि हड्डी रिकंस्ट्रक्ट हुई है, बनी है, उसमें उन्होंने वायर से उसको बांधा है. रॉड नहीं लगवाई मैंने, वो प्लेट डालते हैं. मैंने कहा फिर आप काटोगे फिर निकालोगे, ऐसी कुछ डालोगे, इंजन बंद तो बंद, अब दोबारा खोलने की जरूरत ना पड़े. तो अब तो जैसे आई गो वेट ट्रेन, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव फुल रेंज ऑफ मोशन. Okay. So I think it's all in the mind. I started with that. Yeah, Now, yeah. the age is just a number, Just a which is number. a mind. So if your mind is strong, I think you can achieve anything. That's what I feel, and that's how I practice, and that's the high it gives me. I'm not going there कि मेरे को कोई monetary benefit होगा, कि मेरे को कुछ इनाम मिलेगा, या मेरा कोई गवर्नमेंट तो हमें जानती भी नहीं कि हम हैं कौन. Obviously. If we were a smaller country, people would appreciate you for your efforts. But that's okay. I think self जो बोलती है ना, appreciation is the best appreciation. Had there been an incident wherein you have felt maybe some rough incident जहाँ आपको लगा हो कि यार there was some other power which has actually saved me this time, otherwise आज तो मैं गया था. हाँ, ये मेरी मॉम भी बोलती है कई बार, थैंक गॉड. मैंने कहा था ओके, बहुत अच्छी पार्टी हुई, बहुत अच्छा डिनर हो गया, थैंक गॉड, सब अच्छे से हो गए. मैंने कहा ओके, थैंक गॉड, बट ऑल्सो थैंक मी, because I was also part of it and I was organizing it. See, God cannot handle everything on his or her own. He has made us. He's telling us, and He's given us wisdom. He's given us knowledge. He's given us morality. Karo bhai. He can't hold everybody's hand. But yes, sometime ऐसा होता है कि things like जैसे मेरा accident हुआ.
नाउ आई नो कि क्यों हुआ था. मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट, और मेरा दिमाग सिर्फ 2 सेकंड के लिए हटा होगा. अच्छा. सिर्फ 2 सेकंड, मुझे पता है. और मैंने एक्सीडेंट होते हुए देखा है अपना. कैसे देखा है? मेरा गोप्रो लगा था हेलमेट पे, ऊपर लगा हुआ था, पीछे से सूरज आ रहा था. हाँ, तो बिकॉज गोप्रो से तो आप फ्रंट अपने आप को तो देख नहीं सकते, तो मैं शैडो में देख रहा हूँ. सन पीछे से राइज हो रहा है, और 11 बजे का टाइम था, 10-11 बजे का. ठीक है. सन आ रहा है तो रिफ्लेक्शन पड़ रही है, देख रहा हूँ बाइक जा रही ऐसे गया, ऐसे करके गिरा. गिरते टाइम तो आ गई, बिल्कुल. जब बाइक के अंदर क्या क्या हुआ सो वो रिफ्लेक्शन में दिखाई दे रहा साफ. अच्छा. सो yes, I thank God कि all right, my injuries are not too much. I didn't die. I could have, because the speed was very high. सिर्फ कंधा ही टूटा, so thank God. कि इतने में ही आपने सल्टा दिया हमारे को. Yes, obviously, you know, you always feel thankful to God, that supernatural power, that force which is beyond understanding, which we have not been able to understand till now. That thank you, Lord, for keeping me safe. Of And course. completing this race. Of course, yes. And when you start, so you always like, you know, you're remembering. Before I sit on my bike, I do that. Okay. I remember my God and I say, okay, I'm doing my best. Please be there. I don't want to let you down, but you also look after me. So yes, I do believe that there That's is something great. beyond. So we are almost at the end of the podcast. Anything that you want to say as a rider, as an instructor, because you instruct people, as a message to the public? So I want to tell 2-3 things. एक तो don't think that bikes are unsafe. ये हमारे फैमिली में बहुत सारे हैं. मैंने तो कार ले दी है. क्यों? Because bike is unsafe. क्यों? I think bike is much safer because your responses are better. You can jump off the bike, you can leave the bike, you cannot leave your car. This message is for mummies actually. These messages for mummies, aunties, and even uncles. Okay. That it is not like that. Like one of my nephew, he bashed against a pillar. एयरबैग खुल गया, गाड़ी वहीं छोड़ के भाई साहब आके घर आके सो गए. ठीक है, इट हैपेंड विद हिम. सो वाज ही सेफ? नो. My son has been riding for so many years, nothing. One accident he had on the highway wherein the truck wala, and that happened because of my son's mistake, because he was not focused. As a kid, I would always tell him, shut your eyes for 1 minute and your eyelid should not flicker. But his eyelids would go like that, which means you are not able to focus. You are not relaxed. So meditation जो हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में और हर जगह में है, दुनिया के और देशों में भी है. So that's important. So that makes you a better rider. Before you ride, during your ride, it's always a good idea to shut your eyes, relax. Don't think about anything. Just relax. Okay. That makes you stay focused better. All right. So bikes are not dangerous. Be healthy. No, everybody cannot ride a bike. Everybody cannot be a biker. To be a good biker, you should be in a good shape. You should exercise. You should have good endurance. Your back should be strong. Go to the gym. Lift some weights. Core should be good. Yeah. So ऐसे नहीं कि बाइक वाली सीट पे ऐसे हाथ मारो और बैठ गया. Love your bike. Read the Zen of motorcycling. Your bike should be an extension of you. जैसे I am from the army. So a weapon is like, for instance, I always carry this. This is a pocket knife which I can carry. I always carry it for my self-defense. It is not illegal, it is legal because it is 4.5 inch less as का blade size. I can carry it almost everywhere. जहाँ नहीं ले जा सकता मैं नहीं ले जाता. Like airport I can't carry, train में नहीं ले जा सकता, flight में नहीं ले जा सकता. Now the point is, when I'm using this knife, now I'm looking at you and I'm opening this knife and it's ready to use. I didn't look at it. I can shut it and I can keep it in my pocket without looking at this. So it is an extension of mine. Now if I have to scratch, I don't have to look at which finger I need for scratching and then scratch. It's part of your body and they know. Motorcycling should also become like a part of you. Unless and it is an extension of your body, a part of you, you will always disconnect, and disconnect means accident. True. So that is the third thing which I want to say. And fourth thing which is very important is that ride reasonable. Ride as per the laid down laws. Don't do things which will trouble anybody. And if you are fond of troubles, then please compete in competitions. It's all open.
go 140. No one No will problem. stop. You'll have a Yeah. license to ride. Absolutely. So that is my little message. And motorcycling is an amazing sport, and I think one must love it and love motorcyclists. Okay. Now I've got some rapid fire questions for you, Yeah. and I just want just a single message kind of a thing, not a big statement. So, which was the first bike you fall in love with? So that was a Java, my first motorcycle, which my You modified. wife called Barbara. Okay. Okay. 5 hand signals to communicate when you are driving in a group. I think I've already communicated, and let's pass this on to your viewers here. Fine. That let them write back what are those. I think we'll see if it is right or wrong. But one thing which you remember is this: making a fist means stop, and this means follow, and this means two, and this means a single row, and this means come on to this side. There are very many. And वो leg वाला नहीं no, करता. not at all. Not at all. Okay, 3 bike accessories that are must for your bike. So when you say bike accessories, it is like what you wear or No, on the bike. On the bike. motorcycle. Yeah. So see, जो bike के जो contact point होते हैं वो आपके होते हैं foot peg and your hands and your saddle. These are 5 points of contact on a bike. आपके हाथ touch होते हैं, आपके hips touch होते हैं और आपके foot rest Good होता है. The foot rest should be good if it is rubber. I prefer without rubber with the teeth so that उसमें पाँव फिसलता नहीं. बारिश होगी तो कोई problem नहीं होगी. That's one. ठीक है. 2, your seat should be comfortable. जैसे हम फ्लैट बेंच सीट चलाते हैं, जो टूरिंग करते हैं उनके लिए उस तरह की सीट होनी चाहिए. इट शुड बी कंफर्टेबल. ठीक है. बट सॉफ्ट सीट्स आर नॉट कंफर्टेबल. Oh really? Yes. The harder the seat, the better it is, and better your body will know how's the terrain. If it is too soft, your body is not understanding what is happening. When it is harder, your body feels, oh, there is a row, there is a undulation, there is a, oh, this was a hard jump, or I have to land slowly. So all these things. So that. And the third thing is your grip should be soft if you're riding long distances. Your levers, this thing, they should be comfortable. 3 points of contact, they should be the best. Rest everything follows. Perfect. So which one you love the most? Off-road or on-road? Anytime off-road. Okay. One safety tip that a biker should follow. Don't ride if you don't feel you don't want to ride. Okay, that's a statement. Good one. And which is your dream bike now? KTM 450. Okay. Yeah. And which bike do you suggest for the beginners to start, maybe for the racing purposes or maybe for the touring purposes? So it's a little. I'll have to. No, I two cannot different answer in one segments. line. Yeah. So it's a little longish answer. So see, it depends on your height. It depends on your the genre of riding. What do you want to do? अगर आपने touring के लिए बाइक लेनी है, तो आपको ऐसी बाइक लेनी चाहिए जो कम से कम टूरिंग के लिए you should at least go in for a 400cc or at least a 350cc बाइक, ताकि आप लॉन्ग डिस्टेंस में जाओ तो आपको ये ना लगे कि एक और गियर होता है या थोड़ी सी और स्पीड होती. सो गो इन फॉर अ बिगर बाइक. आप जैसे स्क्रैम्बलर इज गुड 450. देन रॉयल एनफील्ड ने बेयर आई है, उसकी इंटरसेप्टर है. इंटरसेप्टर तो खैर टूरिंग के लिए नहीं है, बट बेयर इज अ गुड बाइक. ऐसे बहुत सारे मशीन्स हैं, तो दुनिया भर की अब तो हमारे पास ऑप्शंस हैं. Imported bikes हैं, those who can afford some more money, they can go in for Africa Twin or bikes like that. बाकी जहाँ तक ऑफ-रोडिंग का सवाल है, हमारे पास इंडिया में बहुत कम ऑप्शन है. एक बाइक है ऑफ-रोडिंग के लिए, which is Xpulse. Hero Xpulse. जो हिमालयन आई थी वो? हिमालयन ना, यस. सो क्या है, 2 तरीके की ऑफ-रोडिंग होती है. तो हार्डकोर ऑफ-रोडिंग होती है और एक होती है एडवेंचर टूरिंग. सो हिमालयन हुई, स्क्रैम्बलर हुई, ये सब सॉफ्ट ऑफ-रोडिंग के लिए. Okay. They are not hardcore off-roading. Xpulse is hardcore off-roading. एक जमाने में जब हीरो होंडा साथ थे तो इम्पल्स आती थी बाइक, तो वो हार्डकोर ऑफ-रोडिंग की बाइक थी. बाकी जो है ये सॉफ्ट ऑफ-रोडिंग के लिए तो ठीक है, बट Xpulse with modification, if somebody really wants to get into competitive, or you buy an imported machine. घूम फिर के यहीं आना पड़ेगा. बाइक ले लो, यामा ले लो, सुजुकी की बाइक ले लो, KTM ले लो, फिर तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंपोर्टेड बाइक, बट दे विल कॉस्ट यू एट लीस्ट 10 लाख प्लस. Okay. KLX आ गई है अभी, कावासाकी की रेंज आ गई है. कावासाकी अभी बाइक लॉन्च कर रहा है, व्हिच इज रोड लीगल, बट वो आ भी गई है. बट आई डोंट नो, आई हैव नॉट रीडन इट, बट देयर आर ऑप्शंस नाउ. दे कैन सी कावासाकी also. Okay.
Now, a single word for motorsports. Amazing. So we come to the end of the podcast, and we have got a lot of insights from you. Thank you so much. Hopefully, people will get benefited with that, and they'll become better biker than the rider. Absolutely, yes. So thank you coming for the show. You're most welcome, and pleasure will all mine. And I would love to see more on the road, but as great, good, nice bikers. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Perfect.